Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all the doctors from the Choktai Healthcare Walk-in Clinics to the session titled Hepatitis C in General Practice, What You Should Know. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology and the Health Foundation. Special mention here, Dr. Umar Choktai and Professor Faruqi from Choktai Lab and Dr. Munir from Health Foundation for making it possible. Before I introduce you to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA, aiming to disseminate knowledge and best practices. Parsa Eco Pakistan started as a hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. Our objective is for community providers to learn through video technology, participating in guided practice with specialist mentors. This allows them to treat patient otherwise referred out, ensuring patient with chronic condition receive high quality care without the need for travel and long waits. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted. However, we encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use the raised hand option and the chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. For the convenience of the participant, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whichever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Dr. Asad Ali Chaudhary, is a fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. He has a vast experience of working in community with NGOs and special interest being project related to elimination of hepatitis in Pakistan. He attended the immersion training in September 2017 in New Mexico and started HealthNet Eco Pakistan in November. Later known as Parsa Eco Pakistan, he has introduced ECHO on every relevant forum and engaged leading specialists nationally and internationally to partner with the ECHO movement. At present, he is a president, Pakistan Society of Hepatology and director, Parsa Eco Pakistan. If I could request Arsalan Saab from Chuktai Lab to introduce this session to the doctors who have joined. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Yes, so it was a long journey when Dr. Munir and Dr. Asad Chaudhary came to the clinical director, Professor Waqar Faruqi, for this vision that we should have a mass target of audience, like the patients, and we should treat them and prevent the hepatitis in the city. So after a very long journey, we have come to an end where we can now start treating the patients suffering from hepatitis B and C who are not aware of their disease, and all those like unaffording patients who just need some assistance in their investigation and treatment. So this platform is actually where we are going to encounter the patients who have done their investigations, like screening investigations of hepatitis B and C, and the Health Foundation is targeting like big organizations who have a good footfall of patients, where a large number of patients of such illnesses can be treated. So the model is very basic, that we are already running a setup of walk-in clinics where a very huge number of patients are treated like over a month. So among all those who are having hepatitis B or C screening positive test will be entertained there, and all the uncomplicated cases as per the guidelines which will be shared today in this meeting by Dr. Asad Chaudhary, the patients will be treated in the walk-in clinics, and all those who cannot afford the investigations or treatment from the any private setup, they will be referred to the Health Foundation for all the financial assistance and for the like pharmaceutical assistance, where they will be taken care of. So every patient having hepatitis B and C can come to the walk-in clinic. If the patient can afford the medication price, the medicine will be provided from the walk-in clinic
after the payment of the medicines. And if any patient cannot afford the investigations or medicine, the patient will be referred to the Health Foundation for financial assistance and for the medical assistance. So I would just like to request Dr. Asad Chaudhary. First, I want to thank Dr. Asad Chaudhary for giving us the time to just guide us on how we have to investigate and treat the patients coming to the walk-in clinics having hepatitis B or C positive screening investigations. So Dr. Asad Chaudhary will guide us how we can further investigate and treat the patients suffering from these illnesses. Thank you so much for giving me the opportunity to explain a bit. Thank you. Thank you. I'll hand over to Dr. Asad now. Ji, Dr. Asad. Thank you, Kiran. Dr. Munir is also here. Dr. Munir, अगर आपसे कोई quick comments ले लें, and then I will start, and then Thank you, Dr. Asad. Thank you, Parsa. Thank you, Chughtai. Thank you, Dr. Umar Chughtai, Dr. Waqar Farooqi Saab, and thank you very much, Dr. Salan, for taking us to this level that we are now practically engaged for the next step. And I think this model of getting this basic information regarding elimination strategies and treating patients who are not in a capacity to arrange for their medicines, I think this model can actually be expanded to other facilities. And I congratulate everyone who has participated in making this possible, that this model will soon, I hope, will go a long way all over Pakistan to fight against hepatitis. Thank you, Dr. Asad, for always being there and with all your efforts. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum, everybody. अब मैं अभी आपके साथ शुरू करता हूँ. सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अपने इनिशियल फ्यू मिनट्स में कि why we are doing this और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. तो हेपेटाइटिस सी, आई एम श्योर आप सब लोग यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, और आपने अपनी ट्रेनिंग ईयर्स में ट्रीट भी किया होगा. तो थिंग्स आर वेरी सिंपल. मैं चाहूँ तो वो 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं शायद 10 मिनट और लूंगा आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये क्यों जरूरी है और आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं. ये वॉक इन क्लिनिक जो है ये क्यों इतना जरूरी है. तो और उसमें कोलैबोरेशंस जो हैं बिटवीन अस, जिस तरह मुनीर साहब ने जिक्र किया, हेल्थ फाउंडेशन है. मैं हेल्थ फाउंडेशन को भी रिप्रेजेंट करता हूं, मैं पार्सा ट्रस्ट को भी रिप्रेजेंट करता हूं. आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा पुराना जानते हो तो मैं चुगताई लैब को भी रिप्रेजेंट करता हूं. तो इसलिए वो हर तरफ से जो है कहीं ना कहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह भी यार. तो मैं अब अपनी स्लाइड शेयर करूंगा, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा वेयर वी स्टैंड. It's a very important time in the history of elimination of hepatitis C, and I will be emphasizing that without working together, we cannot achieve success in elimination of hepatitis C. So I'm just going to share my screen now. जी, आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? Yes, we can. Okay. So today's topic is hepatitis C in general practice. मैं बी पर कोई बात नहीं करूंगा. उसका रीजन ये है कि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. we'll have opportunity. तो एट द मोमेंट हम सिर्फ हेपेटाइटिस सी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जितनी आपको नेशनल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन ड्राइव्स मिलेंगी वो सारी की सारी हेपेटाइटिस सी से ही रिलेटेड हैं. तो ये जो है जो मेरा सारा टॉक है आज की, ये हमारा एक हैपनेट फोरम है विद हेपेटाइटिस एक्सपर्ट्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. तो अब ये सारे नाम हैं, आई एम श्योर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज नेम्स. तो इन सारों का हमारा एक कंसेंसस स्टेटमेंट है. इट्स इन पब्लिकेशन. ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा सॉफ्ट फॉर्म्स में. और उसके साथ एक JPMA में एक बड़ी अच्छी WHO की हेपेटाइटिस सी की जो है गाइडलाइंस भी वो भी आ गई हैं. तो माय टॉक इज इन लाइन विद बोथ ऑफ देम. और इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा डॉक्टर अरसलान से, सो डैट वो आपको डिसेमिनेट भी कर दें. और अगर हार्ड कॉपीज भी मैं
पास अवेलेबल जब भी होती है तो मैं उसकी कुछ आपको पहुंचा दूंगा बंडल उसका, ताकि वो आप लोगों के क्लिनिक्स में पड़ा हो. So a little bit about background. Globally, 304 million people are affected with hepatitis B and C. Hepatitis B around 250 million, and nearly 50 million are hepatitis C. And both are the leading cause of liver cirrhosis and cancer. And approximately 1.3 million deaths are reported annually. Pakistan में अराउंड 10 मिलियन पीपल हैं. दुनिया में अगर 5 हेपेटाइटिस या 4 हेपेटाइटिस के मरीज हैं, उसमें से एक पाकिस्तान में है. और मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग, तो आप जस्ट लुक एट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. और पाकिस्तान में एनुअली हेपेटाइटिस से अराउंड 27 to 30,000 डेथ्स होती हैं. तो दिस इज हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है. So now we are number 1 in hepatitis C. हम डायबिटीज में भी आ रहे हैं, ओबेसिटी में भी आ रहे हैं, और इस वक्त हमने चाइना को शिकस्त दे के तो पहली पोजीशन पे दुनिया में इन टर्म्स ऑफ वायरीमिक इन्फेक्शंस पाकिस्तान सी खड़ा है, पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी के साथ खड़ा है. और एक और फिगर आप अगर देख सकें, 2008 में द नेशनल प्रेवलेंस वाज 4.9%. and you can see the breakup of provinces on your left side. Punjab 6.7%, Balochistan 1.5%, Sindh 5%, KP 1.1%. But what happened in Punjab in 2018, the prevalence of hepatitis C, and this is some study where Chuktai lab was also involved, went up to nearly 9%. तो दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि सिंध में भी इट रिपोर्टेड एन इंक्रीज बट नॉट दैट मच. सो अनफॉर्चुनेटली we are not getting anywhere in defeating hepatitis C, and we have to think about a lot of strategies how we can do it. इसमें जो आपको नजर आ रहा है रेड बॉक्स में, These are the viremic infection. आपको पता है कि एक हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है anti-HCV, and you can see the anti-HCV prevalence in Punjab like 8.9%, Sindh 6.2%, और तकरीबन इनमें से 50% लोग होंगे जो वायरीमिक होंगे. वायरीमिक वो लोग हैं जिनका PCR पॉजिटिव है, जिसका आप वायरस कंफर्म करते हैं, चाहे वो PCR से हो, कोर एंटीजन से हो, या जीन एक्सपर्ट पीसीआर भी होता है, या उससे हो. तो पाकिस्तान में तकरीबन 9.7 मिलियन पीपल हैं who are assumed to be viremic. ये 2022 के अराउंड का डेटा है. थोड़ा सा मैंने जिस तरह आपको कहा था कि आपको मैं बताता चलूं कि why this is so important, why चुगताई walk-in clinics are so important. ये जो आपके सामने एक फिगर है, दिस इज फ्रॉम ये नेशनल हेल्थ अकाउंट्स है जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है. पाकिस्तान में 100 में से 60 लोग प्राइवेट सेक्टर से इलाज कराते हैं. अगर आप उस तरह देखें तो 60% ऑफ द पीपल वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, पब्लिक सेक्टर नहीं कर रहा. और अगर आप पब्लिक सेक्टर को भी देखें तो उसमें से तकरीबन 26% है जो कि ये जो गवर्नमेंट के पब्लिक हॉस्पिटल, बाकी एनजीओज हैं, कुछ इंश्योरेंस हैं, एक चंक है जो मिलिट्री से कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी, मतलब मल्टीपल चीजें हैं. डोनर्स का इसमें जैसा लोकल एनजीओज भी हैं और अदर डोनर एजेंसीज भी हैं. तो 60% लोग हैं जो इन्होंने लेबल किए हैं, और मेरे ख्याल में वो 70-80% है अगर आप बाकी चीजों को भी देख लें, जो विच रिजॉर्ट टू प्राइवेट सेक्टर फॉर हेल्थ केयर. सिमिलरली द पीपल हु कम टू प्राइवेट सेक्टर, उनमें से 90% इज आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर. वो अपनी जेब से इलाज करा रहे हैं. हमारे यहाँ कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है. ऑब्वियसली एनजीओ हेल्थ आती हैं और हेल्प करती हैं. अभी जिस तरह हेल्थ फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, पारसा ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अरसलान ने कहा कि जो बहुत पुअर पेशेंट होंगे वो हेल्थ फाउंडेशन से हम करेंगे. बट अभी भी देख लें कि लोकल एनजीओ का शेयर कितना है. तो I cannot stress more कि what we have to do in future. So ये बड़े important है, इनको देखें और कहीं ना कहीं पे हमने इस पाई चार्ट को बेहतर करने की कोशिश करनी है.
और इसको भी अगर आप एक नजर मारें कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है उसमें आप सिर्फ डॉक्टर की फीस और दवाई नहीं दे रहे, आप 100 रुपए का ब्रेकअप देख लें पाकिस्तान का, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पर्ची फी है, डॉक्टर फी है, उसमें मेडिसिन 50% कॉस्ट करती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट 8% तक कॉस्ट कर जाते हैं, और उसने खाना भी खाना है, किसी को टिप भी देनी है, हमेशा एक बंदा साथ आता है, उसका भी कोई खर्चा हो जाता है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इट इज इमेंसली इम्पोर्टेंट कि पीपल आर टेकन केयर ऑफ एट देयर डोर स्टेप्स। और ये सिर्फ हेपेटाइटिस सी की बात नहीं हो रही, ये हर चीज कवर करती है। एंड दिस इज व्हाट द पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ क्लिनिक्स आर लाइक। जिस तरह से आप लोगों के और शहरों में भी हैं, सिर्फ लाहौर में तकरीबन 12-14 के करीब जैसा ज्यादा हूँ आपके वॉक इन क्लिनिक्स। तो दैट्स अ ह्यूज सर्विस फॉर द पेशेंट। कोई बंदा शालमी से डिफेंस नहीं आएगा आपको दिखाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही लगा लें, चाहे वो रिक्शे पे या चिंची पे आ रहा है, तो जिस तरह भी आ रहा है, तो वो आप देखें कि कितना फर्क पड़ता है कि अगर आप लोग doctors, medical officers who are running those clinics, they are able to take care of hepatitis C in Shahalmi or Bhagwanpura or wherever, कि उस बंदे को मूव ना करना पड़े। So coming back to hepatitis C, this is the national Hep C cascade of care data 2022 तक है। hepatitis B को देख लें, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल वायरीमिक पेशेंट अगर तकरीबन 10 मिलियन है, तो डायग्नोज तो सिर्फ 2 मिलियन तक हुए हैं, और ट्रीटमेंट उससे भी कम है। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर रियली कंसर्न कि अगर यही स्टेट ऑफ अफेयर्स रहता है, और हेपेटाइटिस बी में भी अगर आप देख लें तो कोई सूरत हाल जो है कि बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। ये जो आपके सामने डेटा है, ये वो फिगर्स हैं जो जिन लोगों को ट्रीटमेंट हुआ है। इसमें आपको प्राइवेट मार्केट भी नजर आ रही है, पब्लिक मार्केट भी नजर आ रही है। प्राइवेट मार्केट वो है जिसने एक मरीज ने दवाई ली, उसने खरीदी, अब वी अज्यूम के 100% लोगों ने जब पैसे खर्च किए तो दवाई खा ली होगी, हो सकता है कि 1-2% ने किसी वजह से ना ले सके, साइड इफेक्ट्स हो या कुछ हो। और पब्लिक मार्केट की जो उसके नीचे फिगर है, पब्लिक मार्केट की वो फिगर है जो गवर्नमेंट ने दवाई प्रोक्योर की है। जो दवाई गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की है, जरूरी नहीं कि वो मरीज को मिल भी चुकी हो सकता है उसकी 60% यूटिलिटी हुई है, 70% हुई है, हु नोस। And numbers are in front of you. We peaked in 2017, 2018, फिर 19 में आप देखें सिर्फ 2 लाख पेशेंट के करीब ट्रीट हुआ है। फिर कोविड के साल थे जिसमें नंबर जितने अच्छे नहीं थे। इवन 2023 में पिछले साल भी जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 2,16,000 के करीब है पेशेंट की। तो इज दिस एनफ? अगर आप इसको कंपेयर करें तो अभी तक इतने सालों में सिर्फ 20 लाख के करीब, अगर ये फिगर आप देख सकते हैं, 21.1% लोग हैं who have been brought within treatment fold. Around 80% of them, they are still without treatment. So we have to find them, we have to treat them. इसको हम finding the missing millions and linkage to care का स्लोगन यूज करते हैं all over the world, because otherwise we cannot eliminate hepatitis C. अभी आपने बात की कि जी हमारे पास एक ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स है हु रिपोर्टिंग टू द वॉक इन क्लिनिक्स एट चुगताई सेंटर। एवरीबॉडी शुड बी स्क्रीन। आपको जो मिलेगा आपने उसको, यू हैव टू लिंक देम टू केयर। कमिंग बैक अगेन, हेपेटाइटिस सी वेरी क्विकली, हेपेटाइटिस बी और सी खून से फैलते हैं। फॉल्टी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अब आपको पता है सब स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। अभी भी far flung areas में people are doing with the kit method which is not very reliable. वो लोग ELISA यूज नहीं करते because that's deemed to be expensive. Dialysis में there is a high proportion of patients hepatitis जो जिनको ट्रांसमिट होता है। अगर instruments used in endoscopy or surgery, they are not properly disinfected or sterilized, hepatitis। मैं ये तस्वीर इसलिए लगाई है कि अभी भी अब हम समझते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नंबर 1 इन स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी। और ये जो तस्वीरें हैं आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको नजर आएंगी। जस्ट वॉक इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
any NGO run medical facility, look at the way they are disposing the syringes, they are disposing. और ये जो नीचे एक कॉर्नर है आपके लेफ्ट साइड पे, you can see that's in a hospital which is a very busy emergency. What they have done is कि उन्होंने पेन किलर्स को, ये पैथिडीन और इस तरह की दवाइयों को भर के सोडा बाइकार्ब, और ये करते क्या है, ये 2-2 3-3 मरीजों को लगा देते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि 10 सीसी के 3 सीसी की 3 सिरिंजें बना लें। वो 10 सीसी की एक बनाएंगे, 2 ए को लगाएंगे, 4 सीसी बी को लगा देंगे, वो उसको लगा देंगे, इस तरह करके करते हैं। सो whom should we blame? हम तो नाइयों को और डेंटिस्ट को कहते रहते हैं कि इधर करें, लेकिन सबसे पहले इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम अपना घर सीधा करें। आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि अपने क्लिनिक्स में, दूसरा बी वेरी केयरफुल कि जो डिस्पोजल कैसा हो रहा है। एंड अगेन नीडल स्टिक इंजरी इज जो हमारा हेल्थ एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। रोड साइड डेंटिस्ट हैं, बार्बर्स हैं, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, आईवी ड्रग अब्यूज, they we are all aware they spread hepatitis C. उसके बाद टैटूइंग है, शेयरिंग ऑफ टूथब्रशेस इज अ सोर्स। मस्जिदों में, गांव वगैरह में ये देखा गया है कि वहां पे लोग मसवाक भी शेयर कर रहे होते हैं, तो दैट्स अनदर सोर्स। आपने शेविंग का सामान शेयर नहीं करना। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आपने लोगों को बताना है। एंड मे बी के वी डिजाइन अ फ्लैक्स और स्टैंडी जो कि आपके क्लिनिक्स में लगी हो, कि जहाँ पे लोगों को कार्टून से ये समझाया जाए। सिमिलरली ईयर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, ये सारी चीजें हैं जो if they are done with unsterilized instrument, this lead to spread of hepatitis C. और यहाँ पे ये भी जरूरी है कि ये कैसे नहीं फैलता। ये गले मिलने से नहीं फैलता, खांसी से नहीं फैलता, छींक आ जाए, इकट्ठे बैठ के खाना खाने से, झूठा पानी पीने से, साथ सोने से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता। तो इसको जब क्लियर रखें, क्योंकि आपने लोगों को बताना होता है ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है। दिस इज अनदर डेटा फ्रॉम जो पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल है। You can see कि unsafe blood transfusion, reuse of syringes, shaving at barbers, ear nose piercing, ये सारी वो चीजें हैं जो हेपेटाइटिस सी की, इसमें आपको ब्लू में हेपेटाइटिस बी नजर आ रहे हैं। और तो अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ मेजर कॉज जो कि इस वक्त हेपेटाइटिस सी के फैलने का बायस बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में 3 to 10% चांस हेपेटाइटिस सी का है। ई एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी में 90% तक चांस है। बी की जो इन्फेक्टिविटी है ज्यादा है, फॉर्चुनेटली बी की उस तरह से प्रेवलेंस कम है, और एक वैक्सीन बड़ी अच्छी अवेलेबल है। तो अगर, क्योंकि पिछले तकरीबन 20 साल हो गए हैं, ये हमारे ईपीआई प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड है, तो वी अज्यूम कि अगर हमने तो अपनी वो आदतें नहीं बदली, लेकिन बिकॉज ऑफ वैक्सीन पीपल आर प्रोटेक्टेड, a lot of people are protected against hepatitis B। और अगर आप लोगों ने भी अपनी वैक्सीन नहीं कराई तो प्लीज चेक करें और वैक्सीन जरूर कराएं, ये इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, देयर इज नो एविडेंस कि सिंगल स्टेबल रिलेशनशिप मोनोगैमस कपल में हेपेटाइटिस सी स्प्रेड करता हो, तो यूजुअली हम कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन वो नहीं करते। बट विद हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स, there is definitely spread of hepatitis C। और needle prick injury, you can see 1.8% chance, 0 to 7% chance होता है कि hepatitis C हो जाए। It also depends upon कि कितना वायरल लोड गया है, पेशेंट का वायरल लोड कितना था। हेपेटाइटिस बी की जो ट्रांसमिशन है, इट इज मच हायर एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस सी। तो होता क्या है हेपेटाइटिस सी में, पेशेंट वंस दे गेट एक्सपोज्ड, अराउंड 15% इट विल रिजॉल्व, बट अराउंड 80 to 85% लोग होंगे जो कि दे विल डेवलप क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, जिसमें इन्फ्लेमेशन होगी, and slowly over a period of time, usually 15 years, patient will remain stable, उसको कोई symptom भी नहीं होंगे, but they will develop cirrhosis। When they develop cirrhosis, तो उसके बाद decompensation होती है, जिसका decompensation का मतलब है, ये मैं आगे भी आपको देख लेंगे स्लाइड, कि जिसके who develop ascites, upper GI bleed or encephalopathy, तो that's called decompensated cirrhosis। Compensated cirrhosis में patient has cirrhosis, but there are no complication। And of course, it is Pakistan में the most common cause of liver cancer is
हेपेटाइटिस सी। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में अल्कोहल भी है, अब फैटी लिवर भी आ रहा है, हेपेटाइटिस बी का भी है जो कि हमारी ईस्टर्न साइड पे काफी ज्यादा है, ये चाइना जापान इस साइड पे बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हेपेटाइटिस सी इज द मेजर कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। पेशेंट्स आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, इंसिडेंटली पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप अपने क्लिनिक्स में सबको स्क्रीन करें, आपके पास एक पेशेंट आया है जिसका नजला जुकाम बुखार है, पेट में दर्द है, आपने उसको भी स्क्रीन करना है और उसके अटेंडेंट को भी स्क्रीन करना है। तो यूजुअली होता ये है कि कोई लोग वीजे के लिए गए हैं, जिसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह रिक्वायर करती है, वहां पे पॉजिटिव, तो उसको सिम्टम कोई नहीं होता। और आपके अपने पास डेटा होगा कि हेल्दी ब्लड डोनर्स में कितना आता है। तो ये वो लोग हैं जो इंसिडेंटली पॉजिटिव हैं। अब अगर कहीं पे भी ब्लड डोनर है, आपके पास इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग आती होगी लैब के अंदर, इट विल बी इंपॉर्टेंट आप खुद इसको पता करने की कोशिश करें कि कितने लोग हैं जिनका इंसिडेंटल, वो सेहतमंद लोग हैं। तो एवरीबॉडी शुड बी स्क्रीन। वेग सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को है पेट में दर्द, थकावट, दर्दें, हल्का सा बुखार, ये हर किसी को नहीं होता। और लेट स्टेज में जो है, फिर जो डीकम्पनसेशन की बात की, अगर सिरोसिस हो गया है, डीकम्पनसेशन हो गया है, उसको हेमेटाइमसिस हो सकता है, मलीना हो सकता है, कंफ्यूजनल स्टेट हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। और स्टिग्मेटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, ये आप पढ़ सकते हैं, जॉन्डस, स्पाइडर नेवाई, फिंगर क्लबिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, एडीमा, ये सारी चीजें हैं। गायनिकोमेस्टिया भी इसके अंदर आ जाता है। तो यू नीड टू, जो आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा होते हैं, ये आपकी सारी किताबों में लिखा हुआ है। तो यू हैव टू टेक हिस्ट्री, या हिस्ट्री में आप उसके सिम्टम्स को देखें, उसके एक्सपोजर को देखें। फैमिली हिस्ट्री जरूर लें कि आर देयर एनी अदर पेशेंट्स जिनको लिवर डिजीज है। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनसे, और अक्सर वो बता देते हैं जी हमारे चाचा को इस तरह हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके जिगर में वो कह रहे थे कि रसौली थी, और इस तरह करके आपको उनसे पूछें उन लोगों से। सिमिलरली आस्क अबाउट स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई रिस्क बिहेवियर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपके सिस्टम में कोई डेटा कीपिंग भी होगी, सो दैट वी कैन फिगर अराउंड कि किस इलाके में क्या चीज ज्यादा हो रही है। तो क्वेश्चन इज whom टू स्क्रीन, द आंसर इज एवरीवन। कोई इसमें कोई माफी नहीं है। आपके पास पेशेंट आते हैं, अगर मेरे पास पावर्स हों, जो आजकल हुकूमत के पास पावर्स हैं, तो मैं हर किसी को स्क्रीन करूं। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप किसी की स्क्रीनिंग छोड़ें। अगला क्वेश्चन है हु शुड बी ट्रीटेड। अगेन, एनीबॉडी हु इज PCR पॉजिटिव शुड बी ट्रीटेड। इसमें आप एक्सेप्शन दे सकते हैं कि जिनकी बहुत लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, किसी को लंग कैंसर है, किसी का लिवर इतना एडवांस्ड फेलियर में है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही आपको पता है 3 से 6 माह है, यू कैन गो अवे, गेट अवे विद दैट, बट अदरवाइज। और मैं आपको ये भी बताना चलूं, आप गलती से भी ट्रीट कर देंगे तो फायदा होगा। तो इस चीज को आप जरूर ज़हन में रखें। हाउ टू स्क्रीन। कम्युनिटी में हम रैपिड टेस्ट यूज करते हैं, उनको चीप है और क्विक है, पॉइंट ऑफ केयर है, तो है। जहां पे आपके पास फैसिलिटी है और आप कर सकते हैं, तो आप हेप सी बाय एलाइजा। प्रॉब्लम कम्युनिटी की ये है, आप सवाल करेंगे जी एलाइजा, एलाइजा बहुत बेहतर है। प्रॉब्लम ये है, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एवरीवन शुड बी स्क्रीन, आपको उसी वक्त रिजल्ट चाहिए। अगर तो आप एलाइजा की रिपोर्ट उसी वक्त निकाल सकते हैं, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक कुछ टाइम ले लेती है, तो वो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप एलाइजा, अगर आप उस वक्त नहीं निकाल सकते, वो मरीज दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। तो वो हम ये करते हैं कि हम रैपिड टेस्ट, और ये बाय द वे WHO की रिकमेंडेशन है, ये कोई हम नहीं आपको रिकमेंड करे, सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है। हम उसी वक्त जिनका पॉजिटिव आता है, तो उनके रेलेवेंट टेस्ट उसी वक्त ले लेते हैं, हम उसको काउंसल करते हैं, उसी वक्त ले लेते हैं, सो दैट ही कैन बी ब्रॉट इनटू फोल्ड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर वो लाइजा का सैंपल देके चला गया, अगले दिन रिपोर्ट आई, आपने उसको फोन पे, व्हाट्सएप पे या मैसेज कर दिया है, तो उसको आप उस तरह से कन्फ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसी वक्त काउंसलिंग हो जाती है, और उसी वक्त हम उसको एटलीस्ट वी हैव फेस टू फेस कन्वर्सेशन कि भाई आपको ये मसला आया है और आगे ये करना है, घबराने की बात नहीं है, और फिर हम उसको आगे गाइड करते हैं। अब NTHCV पॉजिटिव आ गया, आगे क्या करना है? आपने सिर्फ दो काम देखने हैं। एक तो वायरीमिया कंफर्म करना है। हेपेटाइटिस सी का मतलब, NTHCV पॉजिटिव का मतलब है कि इसको हेपेटाइटिस सी हो सकता है या नहीं, ये हमें नहीं पता। तो आपने
ये जानना है कि इसको हेपेटाइटिस सी है कि नहीं। उसके लिए आप फिर वायरीमिक टेस्ट करेंगे जो कि पीसीआर की शक्ल में। और दूसरा चीज आप ये जानना चाहेंगे कि वायरस अगर मौजूद है तो उसके जिगर के क्या हालात हैं, उसका लिवर स्टेटस क्या है। तो उसके लिए आप टेस्ट करेंगे। यहां से मैं, चूंकि मैं अब वाइंड अप कर रहा हूं आपको बताने के लिए, ये चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हैं और ये कम्युनिटी की हैं। ये वो चीजें हैं जो हम एक जनरल प्रैक्टिस में एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकता। तो मेरा जो इससे आगे आपको मैसेज है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, और आप 100 में से 60-70 लोगों को ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो फोकस इज के whom टू ट्रीट एंड whom टू रेफर। और वो जो आपके लिए जो सबसे बेहतर चीज है कि जिनको आपने रेफर करना है वो आप लोग के पास अवेलेबल है। आपके हर सेंटर में कोई ना कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। लेकिन जो कम्युनिटी लेवल पे है, कॉस्ट कटिंग में दूसरा 60 to 70% विल बी टेकन केयर ऑफ बाय यू गाइस। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन इन पाकिस्तान। तो Hep C screening positive, you have to confirm viremia and evaluate or assess liver status. How it is done? वायरीमिया के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। HCV RNA बाय जो रिकम्बिनेंट PCR है जो यूजुअली यूज होता है। कोर एंटीजन इज अनदर थिंग, एंड जीन एक्सपर्ट के साथ आप HCV देख सकते हैं। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस सी RNA बाय PCR। लिवर स्टेटस के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 3 टेस्ट कराने हैं, हाउ दैट विल हेल्प यू स्टेज लिवर डिजीज। एक CBC है, एक LFT है और एक क्रिएटिनिन है। शुगर मैंने वैसे लिख दी है क्योंकि हम शुगर, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान नंबर 1 हो रहा है, तो जस्ट क्योंकि अगर है तो वो आप उसको फर्दर गाइड कर सकते हैं। आपके लिए एक PCR का टेस्ट है और सिर्फ 3 टेस्ट हैं, CBC, LFT, क्रिएटिनिन, दैट्स इट, फुल स्टॉप। जो एडिशनल टेस्ट हैं वो सेरोटिक्स के लिए लिखे हैं मैंने, जिस अल्फा फीटोप्रोटीन और एंडोस्कोपी। लेकिन ये एडिशनल टेस्ट जो हैं सिर्फ उन लोगों में है सेरोटिक हैं। तो आप, आपके जेहन में सवाल होगा जी ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेरोटिक है, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। लेकिन इस चीज को जहन में रखें। यू हैव टू कंफर्म वायरीमिया एंड स्टेज लिवर डिजीज। फॉर स्टेजिंग लिवर डिजीज यू नीड CBC, LFT, क्रिएटिनिन। अब आपको कैसे पता लगेगा ये सेरोटिक है और नॉन सेरोटिक है? आपके पास HCV पेशेंट है, आप अपने जो टेस्ट मैंने आपको बताए थे CBC, LFT से आप एप्री स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ये AST टू प्लेटलेट रेशियो इंडेक्स होती है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। अगर एप्री जो है इट इज लेस देन 1.5, पेशेंट इज नॉन सेरोटिक। इफ एप्री इज मोर देन 1.5, पेशेंट सेरोटिक। इसको जानने का फायदा क्या है? नॉन सेरोटिक, दे आर गुड रिस्क, दे हैव एक्सीलेंट रिस्पांस टू ट्रीटमेंट एंड दे मस्ट बी ट्रीटेड। ये वो लोग हैं, अगर आपके पास 100 बंदे का PCR पॉजिटिव आता है, तकरीबन 60 लोग ऐसे होंगे जो नॉन सेरोटिक होंगे, जिनका एप्री लेस देन 1.5 होगा। नथिंग डूइंग, 12 हफ्ते का इलाज है, आप इलाज करेंगे, उसके 3 महीने बाद आप PCR चेक करेंगे एंड यू आर डन। आपने 100 में से 97 पेशेंट ठीक कर दिए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, मैं आपको आगे फिर इसको एक्सप्लेन कर देता। अगर पेशेंट का एप्री मोर देन 1.5 है तो ये वो लोग हैं हु कैन कुड बी ऑफ पुअर रिस्क। अब इसमें बड़ी वेरिएशन है कि वो किस स्टेज पे है। मैंने आपसे बात की थी कि वो कंपनसेटेड हो सकता है, डीकंपनसेटेड हो सकता है। तो ये पुअर रिस्क है, इनका जो रिस्पॉन्स रेट है उतना अच्छा नहीं होता। देयर विल नीड फर्दर वर्कअप एंड दे विल नीड पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलो अप। इन लोगों का इलाज होने के बाद वायरस खत्म भी हो गया तो इनको आप डिस्चार्ज नहीं करते, हर 6 माह बाद आप इनका फॉलो अप करते हैं। तो इस चीज को जहन में रखें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपने पेशेंट को नॉन सेरोटिक और सेरोटिक क्वालिफाई किया है। और सिरोसिस में मैंने आपसे कहा था कि एक कंपनसेटेड होता है और एक डीकंपनसेटेड। डीकंपनसेटेड वो है
जिसको कॉम्प्लिकेशन हुई है, असाइटिस, अपर जीआई ब्लीड, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी एंड लिवर कैंसर। तो आपका जो डीकम्पेंसेटेड पेशेंट है वो आप रेफर कर रहे हैं, आप उसको अपने पास नहीं रख रहे, आप उसको रेफर कर रहे हैं। एप्री 1.5 में आपने खुद अगर देखना है तो आपने उसका अल्फा फीटोप्रोटीन और आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, और अगर वो अच्छा है, स्टेटस है, टेस्ट इतने बुरे नहीं है, तो देयर इज नो हार्म कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बहरहाल ये वो कैटेगरी है, ये वो 40 लोग होंगे, इन 40 में से भी 10 लोग होंगे जो कि बड़े आराम से हमारे एमओस ट्रीट करते हैं। हमारे क्लिनिक्स में सिर्फ 20 या 30 लोग ऐसे होते हैं जिनको एक कंसल्टेंट का इनपुट चाहिए कि आगे कैसे लेके चलना है। अब डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस या सिरोसिस आप कह लें कैसे, एक मैंने आपको एप्री बताया है और एक इलास्टोग्राफी है जो कि लिवर की स्टिफनेस मेजर करती है, फाइब्रोस्कैन है, शेयर वेव। मैंने ऊपर फाइब्रोस्कैन का और शेयर वेव का जिक्र बिल्कुल नहीं किया क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, तो वी डोंट गो फॉर देम, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, इफ इट इज अवेलेबल, पेशेंट इज अफोर्डिंग, प्लीज गो एंड यूज इट। लेकिन एप्री इज समथिंग दैट वी डू। अब आप सोच रहे होंगे जी अब एप्री क्या बुलाया, कैसे यूज करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपके सामने ऐप है एमडी कैल्क के नाम से, तो सॉरी, तो इस ऐप में ये इसको आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, इसमें आप एप्री डालें, ये एएसटी टू प्लेटलेट रेशियो इंडेक्स है, आपने एएसटी डालना है, मैंने इसमें एएसटी 44 डाला है, अपर लिमिट उसने लिखी हुई है, और उसके प्लेटलेट्स 222 थे, और इसका एप्री 0.5 है, दैट मींस इट्स लेस देन 1.5, सिंपल। इसी तरह सिरोटिक पेशेंट में एक चाइल्ड स्कोर होता है, वो भी इसी ऐप में आपको मिलेगा, सीटीपी स्कोर कहते हैं, चाइल्ड ट्रू और ट्रू क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको पता लग जाता है कि वो चाइल्ड ए में है, चाइल्ड बी में है, चाइल्ड सी में है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको सीबीसी और एलएफटी किए थे, तो बहुत सारे मुल्कों में तो वो सिर्फ प्लेटलेट और एएसटी करते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम लोग यहाँ पे अलग अलग करने में अक्सर इतना डिस्काउंट मिल जाता है लैब से कि हम वो सीबीसी एलएफटी पूरा करा लेते हैं। दिस इज ऑल यू नीड इन जनरल प्रैक्टिस। आपने एप्री कैलकुलेट करना है, आपने मोबाइल पे अभी करें, और ये ऐप फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आपको बेतहाशा कैलकुलेटर मिलेंगे, ईजीएफआर मिलेगा, बीएमआई मिलेगा, मेल्ट स्कोर मिलेगा, सीटीपी स्कोर मिलेगा, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। कमिंग बैक टू ट्रीटमेंट, अब आपने उसका वायरस कंफर्म कर लिया, आपने उसको स्टेज कर लिया, आपने क्लासिफाई कर लिया वो सिरोटिक है नॉन सिरोटिक है, आपने ये फैसला कर लिया इसको मैं रेफर कर रहा हूं या ट्रीट कर रहा हूं। अब आपने ट्रीट करना है, आपके पास इस वक्त 4 दवाइयां हैं, मैं इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सफोस्बुविर है, डेक्लाटेस्विर है, वेल्पाटेस्विर है, रिबाविरिन है। केमिकली देखें, ये NS5A इनहिबिटर है, ये वेल्पाटेस्विर और डेक्लाटेस्विर आती हैं। NS5B पॉलीमरेज इनहिबिटर, ये सफोस्बुविर है, और ये जो प्रोटीज इनहिबिटर है ये ग्लिकैप्रिविर और वॉक्सी लैप्रिविर, ये वो हैं, लेकिन ये चूंकि हमारे उसमें नहीं आता प्राइमरी, उसके अंदर मैं इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं करूंगा। तो आपके पास NS5 है जो कि कम्युनिटी में हम ट्रीटमेंट करते हैं डेक्लाटेस्विर से और सफोस्बुविर से, विच इज चीप एंड इट इज इनफैक्ट द चीपेस्ट इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में 1 महीने का जो कोर्स है आपको 3200 3600 का मिल जाता है, ये 1800 रुपए का था, डॉलर महंगा हुआ है तो ये डबल होगी है इसकी कीमत। तो हियर यू आर विद द ट्रीटमेंट एल्गोरिदम। आपने वायरस कंफर्म कर लिया, आपने उसको बीमारी को स्टेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक ही सवाल पूछना है, मरीज ट्रीटमेंट नाइव है या ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड है। ट्रीटमेंट नाइव वो है जिसका पहले इलाज नहीं हुआ हुआ, ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड वो है जिसने पहले ट्रीटमेंट लिया हुआ है। तो ट्रीटमेंट नाइव है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, नॉन सिरोटिक पेशेंट में सॉफ एंड डेक्ला 12 वीक्स या सॉफ और वेल्पाटेस्विर 12 वीक्स। जो सफोस्बुविर और डेक्लाटेस्विर है ये अलग-अलग आती हैं, उसको 2 गोलियां खानी पड़ेंगी, 2 गोलियां रोजाना खाएगा 12 हफ्ते के लिए। सॉफ और वेल ये कॉम्बिनेशन में आती है, विक्टाना के नाम से, वेल्पाकेट के नाम से, वेल्सो के नाम से। ये सिंगल टैबलेट है जो कि कॉम्बिनेशन में कंबाइंड टैबलेट आती है, 400 मिलीग्राम ऑफ सफोस्बुविर एंड 100 मिलीग्राम ऑफ वेल्पाटेस्विर, ये आपने उसको कॉम्बिनेशन में देनी है और वो खानी है, दैट्स ऑल। अगर सिरोटिक पेशेंट है तो उसमें सॉफ एंड वेल्पा 12 हफ्ते रहेगी, और सॉफ और डेक्ला
24 हफ्ते लेगी। ये ट्रीटमेंट नाइव, उसका पहले इलाज नहीं हुआ हुआ। अगर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस पेशेंट है तो नॉन सिरोटिक में सेम कॉम्बिनेशन है, जबकि सिरोटिक में हम रिबाविरिन ऐड करते हैं। रिबाविरिन के साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसको जरा मॉनिटर भी करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बेशक आप वेरी सेफली आप इनको अपने सीनियर को रेफर करें, यू डोंट नीड टू ट्रीट देम। और ये चार्ट आप अपने सामने रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी अमेज्ड कि ये कितना आसान है। मैंने एक एक स्टेप आपको समझा दिया हुआ है। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये जरा और इस तरह है जिसमें स्क्रीनिंग के बारे में भी है, आरएनए टेस्टिंग के बारे में भी है, एप्री कैलकुलेशन है। ग्रीन में आप देख सकते हैं प्राइमरी केयर है, आपने सॉफ्ट डेक्ला या सॉफ्ट वेल्पा दी 12 हफ्ते के लिए एंड यू आर डन। अगर एप्री 1.5 से ज्यादा है तो कंपनसेटेड सिरोसिस, डीकंपनसेटेड सिरोसिस, और मैंने आपको बताया था लाइफ लॉन्ग एचसीसी सर्वेलेंस करनी है अल्फा फीटोप्रोटीन अल्ट्रासाउंड से। जिनका एप्री 1.5 है उनको आपने बिल्कुल फारिग नहीं करना। तो दिस आई विल बी शेयरिंग विद यू आल्सो। ये वो चीजें हैं जो आपने केयरफुल रहना है, और जहां पे मैं कहूंगा कि अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करें। इफ यू हैव अ पेशेंट विद डीकंपनसेटेड सिरोसिस, प्लीज रेफर। चिल्ड्रन लेस देन 12 रेफर। को इन्फेक्शन हो सकती है हेपेटाइटिस बी की, रेफर करें। HIV की रेफर करें। CKD को आप मत ट्रीट करें, आपके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट आ सकते हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस सी हो सकता है जिसका जॉन्डस है, ये है, तो उसको भी आप अपने सीनियर्स के मशवरे से डील करें। सिमिलरली अगर एक्टिव TB है तो उसमें ही करें। ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए कि अगर साथ ये है तो आप उसको रेफर करें, या आपको पता चलता है कि हिस्ट्री में ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन सिनारियोस में बेहतर है कि आप जनरल कम्युनिटी प्रैक्टिस में उसको डील ना करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ राइबाविरिन है। अगर किसी को नहीं पता उसको हमल है और आपने दवाई दे भी दी है तो ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है। सिमिलरली यूजुअली प्रेगनेंसी में पता चल जाता है। हम ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई माँ करा रही है तो हम उसे कहते हैं कि आप जब तक दूध नहीं चढ़ाएंगे हम इसका इलाज नहीं शुरू करेंगे। हाँ, अगर उसका एप्री 1.5 से ज्यादा है तो मैं उसको काउंसल करता हूँ कि भी आप दूध चढ़ा दें, देयर इज लिटिल बिट ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि मैं उसको डिले नहीं करना चाहूंगा। तो आप इसको लेकिन आपको 1.5 एप्री पे मिलता ही नहीं पेशेंट, क्योंकि सिरोटिक पेशेंट में वैसे ही फर्टिलिटी की बहुत अच्छी नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स अगर उसको ड्रग एलर्जी हो जाती है तो फिर आप यू सीक हेल्प, आप उसको नहीं करेंगे। So ribavirin is an absolute contraindication. If the patient is taking ribavirin, they are advised contraception. This advice is for both male and female. Advise contraception during treatment and for 6 months after the end of treatment, क्योंकि उसका टीरोटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल अगर आप रिबाविरिन ऐड कर रहे हैं। जो गुड रिस्क पेशेंट है उसमें आपने कोई ऑन ट्रीटमेंट टेस्ट नहीं कराना किसी किस्म का। और अगर पेशेंट रिबाविरिन पे है तो आपने 2 हफ्ते के बाद CBC LFT कराना है, उसके बाद हर महीने बाद टेस्ट कराना है। Every patient should have HCV RNA by PCR tested 12 weeks after completing the treatment, क्योंकि SVR आपने देखना है which is sustained virological response, जो कि क्योर है। अगर उसने इलाज मुकम्मल किया है, इलाज बंद होने के 12 हफ्ते बाद उसका PCR नेगेटिव है, तो आपने उसको क्योर कर दिया। एंड दिस यू विल अचीव इन 97% ऑफ द पेशेंट हु आर नॉन सेरोटिक। और जो सेरोटिक पेशेंट है एप्री मोर देन 1.5, दे नीड लाइफ लॉन्ग फॉलो अप विद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर HCC सर्वेलेंस एंड टू वॉच फॉर एनी डीकंपनसेशन। डोंट फॉरगेट, आपने उसके पेशेंट की भी काउंसलिंग करनी है, उसको फैमिली की काउंसलिंग करनी है, उसने शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी। ये जो जितनी हकीमों की दवाइयां वगैरह हैं इसमें हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर आपने फोकस करना है। उसको वेट है तो ओवर वेट ओबेसिटी में उसको काउंसल करना है कि अपना वेट कम करे। हमेशा वैक्सीनेट करना है, हमेशा वैक्सीनेट करना है, सबको वैक्सीनेट करना है। अगर आपको शक है, वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं है, आप उसको कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैक्सीनेशन के ऊपर वैक्सीनेशन होगी है, यू वैक्सीनेट। दिस इज अगेन ये वो मैसेज है जो हम सबको देते हैं। और अगेन उसकी सारी एंजाइटीज, आपको पता है कि इसके साथ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीजें जो है लिंक्ड है। सो आई एम गोइंग टू एंड हियर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, एंड
वी स्टिल हैव 10 मिनट्स टाइम, अगर हम 1 घंटे के हिसाब से हैं तो क्वेश्चंस होंगे। तो वी आर नाउ ओपन। किरण, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर सलान, अगर आप देख जी सकें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हाँ हैं। जी। एक क्वेश्चन है कि इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन रिबाविरिन और उसको किसी ने गाइड नहीं किया, काउंसल नहीं किया कि आपने लिक्टेट नहीं करना, तो क्या हम स्ट्रेट अवे उसकी रिबाविरिन को होल्ड करवा दें? जी, अरसलान, अगर आप लैक्टेशन के कंसेंट पे, तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, आप उसको बिल्कुल उसी वक्त करेंगे। और ऑब्वियसली अब वो चाइल्ड को जरा दोबारा असेस कर लेंगे कि उसमें कोई ऐसी फैक्टर तो नहीं आ रहा, बट रिबाविरिन जो है, और जो मेन चीज होती है, क्योंकि लैक्टेशन पे टू बी ऑनेस्ट विद यू हमने कभी भी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि यूजुअली स्क्रीनिंग प्रेगनेंसी में ही होती है, बट अगर किसी ने कर भी दिया है तो यू जस्ट स्टॉप इट। ये एक और क्वेश्चन चैट में है, इज अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्लूडेड इन द अर्ली स्टेज टेस्टिंग एज पार्ट ऑफ लिवर स्टेटस? आंसर फॉर जनरल प्रैक्टिस इज नो। देखें, मैं आपको फिर कह दूं, ये जो मैंने सारा आपके साथ जो सारी डिस्कशन और टॉक है, ये है कम्युनिटी में। आपने डिजीज बर्डन को टैकल करना है और आपने पेशेंट के रिसोर्स को भी कम से कम यूज कराना है। तो अगर एप्री लेस देन 1.5 है तो हम तो प्राइवेट पेशेंट में भी नहीं चेक करते। हम अल्फा फीटोप्रोटीन सिर्फ उन लोगों में चेक करते हैं जिनका एप्री मोर देन 1.5 है, या फाइब्रोस्कैन अगर मैंने किया है तो F3 या F4 फाइब्रोसिस, जो कि लिवर स्टिफनेस है। तो इन अ कम्युनिटी प्रैक्टिस, क्योंकि हम जितनी बात कर रहे हैं वो वॉक इन क्लिनिक के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, तो द आंसर इज नो। आपने सिर्फ सीबीसी, एलएफटी और क्रिएटिनिन करना है, दैट्स इट। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर या कोई पेशेंट उसको सर, अगर कोई पेशेंट का एलाइजा में वीकली पॉजिटिव आ जाता है, लाइक हमारी कट ऑफ वैल्यू 1 है और उसकी वैल्यू बहुत वीकली पॉजिटिव आ जाती है, तो उस केस में पेशेंट को मतलब हम कराएंगे पीसीआर उसका वीकली? जी, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आज मुझे फिंगर प्रिक हुई है या कोई अनस्क्रीन ब्लड लगा है, तो अलाइजा जो है वो 6 हफ्ते बाद पॉजिटिव होगा, ठीक है। पीसीआर जो है वो 10 दिनों के बाद या 1 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आ जाएगा। तो समटाइम्स जिनका वीक पॉजिटिव आता है वो शायद उस विंडो पीरियड में होते हैं जहां पे एक इन्फेक्शन अभी जन्म ले रही होती है। दूसरी सिनारियो ये है कि वो फॉल्स पॉजिटिव है, कहीं से क्रॉस रिएक्ट कर रहा है, तो ये है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, यू विल गेट द पीसीआर डन। इट्स अ वीक पॉजिटिव भी है, मैं उससे हमेशा पीसीआर जरूर कराता हूँ। ये अलग बात है कि 90% ऑफ देम आर नेगेटिव। मैं यूजुअली वेट नहीं करता। मैं आपको ये स्ट्रेस दे रहा हूँ, जो मरीज आज आपके सामने आके बैठ गया ना, वो दोबारा नहीं आएगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है, देखो, दे आर फिट एंड हेल्दी पीपल, वो बीमार नहीं है। कोविड का एक पैनिक था, आप कोविड के दिनों को याद करें, एक पैनिक था। यहाँ पे पैनिक नहीं है, वो तो बिल्कुल हटा कटा है आपके पास और आपने कहीं टेस्ट कराया तो वो इस तरह से है। तो इस चीज को जरा काइंडली जेन में रखें। यहाँ इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता दूं। आप काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपको फिंगर प्रिक हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, आप उसी वक्त अपना anti-HCV बाय अलाइजा चेक करेंगे उसी वक्त, ठीक है। और मरीज का स्टेटस अगर आपको पता है तो विच इज फाइन। अगर आपको मरीज का स्टेटस नहीं पता तो उसका फौरन सैंपल लें और उसका भी हेपेटाइटिस बी और सी चेक करें, ठीक है। अगर तो मरीज का नेगेटिव है, फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन अगर मरीज का पॉजिटिव आ जाता है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आप बहुत परेशान और एंशियस हैं तो 10 दिन बाद अपना पीसीआर कराएं। ये मेरे साथ 2 दफा हो चुका हुआ है, तो 10 दिन बाद मैंने अपना पीसीआर कराया। अगर आप जो है पीसीआर पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो फिर आप 6 हफ्ते बाद anti-HCV बाय एलाइजा दोबारा करवाएं अपना, क्योंकि वो विंडो पीरियड है कि अगर, क्योंकि हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका anti-HCV पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है जो शुरू में ऑन डे 1, इसका मतलब ये है कि आपको पहले से था, इस नीडल स्टिक से नहीं हुआ।
So that's why what you need to do. तो आप सब लोग अपने आप को स्क्रीन करें और बी की वैक्सीन करें, और इसको भी ज़हन रखें कि आपने किस तरह करना है। ये एक और क्वेश्चन है जी, अमाइनो एसिड बेस्ड सिरप हेपामस सिल्वर, द आंसर विद कैपिटल वर्ड्स इज एब्सोल्युटली नॉट। वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। आप बिल्कुल प्लीज, ये अननेसेसरी दवाइयां हैं, एब्सोल्युटली नो। ठीक है। उसके बाद पेशेंट हु हैज ऑलरेडी बीन ट्रीटेड फॉर हेपेटाइटिस सी, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डू वी एडवाइज हिम टू गेट पीसीआर डन फॉर रिकरेंस ऑफ वायरीमिया। देखें, जो जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आपने एक मरीज का इलाज किया, आपने उसके इलाज बंद होने के 3 माह बाद आपने उसका पीसीआर चेक किया, वो नेगेटिव है, तो पेशेंट इज इफेक्टिवली क्योर्ड ऑफ द वायरस। यू डोंट नीड टू रिपीट इट। हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो कंसर्न होते हैं, तो हम उनको फिर साल 2 साल बाद कहते हैं, 1 से 3 साल बाद उनके कहने पे रिपीट कराते हैं। वो इंडिकेशन मेरी नहीं होती। हाँ, अगर किसी कोई हाई रिस्क बिहेवियर नहीं छोड़ा, आपको शक है, एक ऐसा बंदा आ गया है जिसको आपने ट्रीट किया, जिसका डॉक्यूमेंटेड एसवीआर था, 2022 में इलाज हुआ था, डॉक्यूमेंटेड एसवीआर था, वो आज 2024 में आया, उसके एलएफटीज डिरेंज्ड हैं, तो फिर आप उसका पीसीआर कराएंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग तो उसकी पॉजिटिव होगी, तो फिर आप उसका पीसीआर रिपीट करेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? Any other question? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर असद और डॉक्टर अरसलान, आपसे 2 बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। एक तो ये है कि ये जो हम पीसीआर चुगताई में सॉरी ये जो रैपिड टेस्ट करते हैं आपकी लैब में चुगताई में, वो तो गालिबन एलाइजा से ही होता है ना, ऐसा ही है? जी, वो एलाइजा रैपिड टेस्ट इज ऑलवेज नॉन एलाइजा सर, वो तो है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो रूटीन में ये चुगताई के पेशेंट्स को, अभी तो मेरा ख्याल ये है कि आप हर इनकमिंग पेशेंट का नहीं कर रहे हैं ना करेंटली? जी, सॉरी, चुगताई में रैपिड टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एलाइजा होता है। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मेरा ये ख्याल जी। है कि एक ही पॉइंट नोट कर लें, ज़रा मैं आपसे अलहदा से डिस्कस करूंगा, डॉक्टर असद में और आप ज़रा डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर असद ने ये जो स्ट्रेस किया है कि भाई हर इनकमिंग पेशेंट, नॉट ओनली जस्ट द पेशेंट बट द अटेंडेंट, हम लोगों का रिकमेंडेशन होता है कि 17 ईयर्स एंड अबव, भाग जाए तो 12 ईयर्स एंड अबव भी बताते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 ये, यानी एक पॉइंट सिर्फ नोट कर लें। और नंबर 2 मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक दफ़ा मुझे डॉक्टर उमर ने बताया था कि आपकी ना एक ब्लड बैंक सर्विसेज भी है ना आपका चुगताई का? जी बिल्कुल है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उसको भी कंसिडर कर लेंगे। वहाँ जो डोनर्स आते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनको भी रीच आउट करना चाहिए, हम वहाँ भी एजुकेट करें लोगों को कि अगर वहाँ को पॉजिटिव निकल आता है जब आप स्क्रीन करते हैं डोनर्स को, तो वो भी बड़ा वाइटल है कि वो हम उनको भी मिस ना करें। यानी हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इज टू गो फॉर एलिमिनेशन वेर एवर पॉसिबल। तो ये जो मरीज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वंस अ पेशेंट इज देयर एंड इज विलिंग टू गेट ट्रीटेड और विलिंग टू गेट टेस्टेड, वी शुड नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर वो खुदा ना करे निकल आया तो हम उसको फिर काउंसिल करें और पहुंचाएं। इस पर, इन 2 पॉइंट्स पर ना इंशाल्लाह मजीद बात कर लेंगे। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं अरसलान, आप लोगों के लिए। इस पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका हुआ है। इजिप्ट इज अ रोल मॉडल जिन्होंने हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट किया है। जो एक कोर चीज है, आप सब लोगों ने देख लिया है, ट्रीटमेंट कितना आसान है, कोई इसमें चीज है ही नहीं है। ठीक है। आ, जो इशू है वो फाइंडिंग दोज हु आर अनअवेयर, जिसे हम फाइंडिंग द मिसिंग मिलियंस कहते हैं, एंड लिंकेज टू केयर। आप मरीज को जानने नहीं दे सकते। और चुगताई लैब में अगर आप मेरा विजन पूछें, मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा। मैंने स्क्रीन किया, मैं 1 घंटे में उसका पीसीआर चाहूंगा, मैं उसी सिटिंग में उसको दवाई देके वहां से फारिग करूंगा। तो अभी पॉइंट ऑफ केयर एंड वायरीमिक टेस्टिंग की भी बात हो रही है। वो बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं लैब लेवल पे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, देखें, इन लोगों ने वापस नहीं आना। ये हम मैं आपको अपनी लोकल वजीराबाद, गुजरात, गरजाक, मैं आपको कितनी स्टडीज दे दूंगा जो हमने कम्युनिटी में काम किया, दे आर नॉट गोना कम बैक। हमने क्या करना है, उनको उसी वक्त, उसी दिन, उसी सेशन में कंप्लीट करके 3 घंटे बाद और ये इजिप्ट में हुआ है, उन्होंने जीन एक्सपर्ट्स के साथ किया था। वो जीन एक्सपर्ट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, हमने बहुत सारी चीजें देखनी है। तो वी कैन डिस्कस, क्योंकि अब आपके साथ जब भी हैं तो वी सी कि हम किस तरह से बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम ये अचीव कर गए,
आपके पास लाइन खत्म नहीं होगी लोगों की इलाज के लिए आने के लिए और इलाज करवाने के। आप वन विंडो ऑपरेशन पे चल रहे हैं। यू आर इफेक्टिवली क्योरिंग इन अ सिंगल विजिट। और कॉस्ट के आपके मेडिकल ऑफिसर्स ट्रीट कर रहे हैं, आपकी आपकी नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं जो जो ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। थैंक यू। जी, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन रैप अप। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, वो 1 मिनट के लिए बात करना चाहते हैं, बस बुला दो। Assalamualaikum, sir. Sir, I wanted to ask that if the dosage, if given in combination form, is it in an OD dose? जी, इसमें ये होता है, जो सपोस्पोविर है वो 400 मिलीग्राम की टैबलेट है, और जो डेक्लाटेस्विर है वो 60 मिलीग्राम। तो बोथ आर वंस अ डे फॉर 12 वीक्स। और जो है सपोस्पोविर और वेल्पाटेस्विर है वो सिंगल पिल कॉम्बिनेशन में है। तो दैट इज वन, वो सिंगल टैबलेट है, 400/100 मिलीग्राम आती है। तो वो आपको वंस अ डे देते हैं, अगेन वो द सेम जो मैंने आपको एल्गोरिदम शो किया। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, फारूकी साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, वेलकम एवरीबॉडी। ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा सेशन आप माशाल्लाह कर रहे हो। कीप इट अप। और ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, और मेरा ख्याल है पेशेंट के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा। और ये मुनीर साहब ने इनिशिएटिव लिया था हमारे साथ। मुनीर साहब भाई है हमारे, और बल्कि हमारी तरफ से बड़ा डिले होता रहा इसमें, और ये काफी पीछे पड़े रहे। इन्होंने जो काम करवाना होता है वो करवा के छोड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी के अल्टीमेटली ऑल इज वेल व्हिच एंड्स वेल। No, this is just the beginning, sir. It has This actually is just started the beginning, today. yes. And we are waiting for Chughtai to expand all over Pakistan for this initiative, inshallah. नहीं, इंशाल्लाह। बस अभी जैसे आपको पता है कि 11 सेंटर्स हमारे लाहौर में हैं, 2 गुजरांवाला में हैं, एक फैसलाबाद में, एक सरगोदा में, और एक मुल्तान में। तो अब हम इंशाल्लाह जनवरी ऑनवर्ड इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, और इस्लामाबाद का भी प्लान है। फिर इवन कराची तक इंशाल्लाह हम जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है, आप ये सफ़र जो है, आप हमारे साथ, सफ़र में हमारे साथ हैं। आप जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप भी जाएंगे इंशाल्लाह हमारे साथ। तो असल में तो एट द एंड ऑफ द डे जो हम ये काम कर रहे हैं, और आप भी जो कर रहे हो, मैं तो इसको सदका जारिया समझता हूँ। कि गरीब आदमी जो है, अगर उसको मेडिसिन मिल जाती है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, अच्छी एडवाइस मिल जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी एडवाइस मिल जाती है उसको, तो मेरा ख्याल है नथिंग लाइक इट। मैं डॉक्टर असद चौधरी साहब का बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला और बच्चों के साथ बात की। और मुनीर साहब का तो खैर है ही है, शुक्रिया। नो वर्ड्स टू थैंक हिम। यहाँ पे ये भी डॉक्टर साहब हैं, ये इनसे अच्छा, इनकी मेरी इनसे नहीं, मेरी मेरा ख्याल है ये इसमें कुछ सर वो हमारे डॉक्टर्स भी होंगे जो हमारे ट्रस्ट के, और कुछ है ना, तो अगर आप मैं वो देख रहा हूँ फेमिलियर फेसेस। ये मेरे किरण आमिर। किरण हमारी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं फॉर प्रोजेक्ट एको। तो शी लुक्स आफ्टर, तो शी इज एक्चुअली द होस्ट ऑफ दिस मीटिंग, जो एको की तरफ से जो है ना, शी इज बेस्ड इन इस्लामाबाद। तो शी इज नॉट अ डॉक्टर बट शी रन्स ऑल ऑफ अस। नहीं बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पार्टिसिपेट किया इसी में। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट, दिस इज ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई थिंक हम सब लोगों के लिए ये बड़ा एक, मैं वही बात करूंगा कि यह सदका जारी है जो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और कोई हेल्प की चुगताई साइड से जरूरत हो तो वी आर हियर, यू विल ऑलवेज फाइंड अस स्टैंडिंग ऑन योर बैक। जो भी किसी चीज की भी हम और कुछ कर सकें अगर, तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे जी। बिल्कुल, इसको बेहतर करके आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।
एक क्विक कमेंट अरसलान आपके लिए है, आप जब इसको करते हैं विल फिगर आउट अ वे वी कैन डिस्कस कि हाउ वी स्टे एंगेज्ड विद योर डॉक्टर्स फॉर एनी ट्रबल शूटिंग, ठीक है ना। तो वो एक आप वो हम फिगर आउट कर लेंगे, वो किसी ग्रुप में, ईमेल में या किस तरह होगा कि हम कैसे, ये हम करते रहे हैं जीपीस के साथ कि अगर किसी को कोई बेसिक क्वेरी है, अव्वल तो आप लोग चूंकि यू हैव योर ओन डॉक्टर्स, तो आपको इतना मसला मैं फोर्स ही नहीं कर रहा क्योंकि आपके हर सेंटर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं प्योरली कम्युनिटी पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। जी किरण, ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक ये भी सजेशन है कि हमारे पास अब ये जो डॉक्टर्स हैं इन सबके ईमेल्स आ गए हैं, और हम इनको अगर IACO पे रजिस्टर कर लें तो हमारे अपकमिंग जो सेशंस हैं, इफ दे आर इंटरेस्टेड, उनको ऑटोमेटिकली जो है नोटिस मिल सकता है। बिल्कुल, तो आप कर लें, आप कर लें, जी, ठीक है। so a heartfelt thank you to our entire team from Parsa Trust and Parsa Eco Pakistan for their incredible support and dedication, and special thanks to Dr. Salan and Hamza, Manager Coordination from Chuktai Lab, for stepping up and coordinating with us on such a short notice. So Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting.